Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. And children, today I am here after a long time. As you know, that 9th class syllabus of NCERT books has completely changed, right? So according to the new syllabus, one new book is added, and that is Kaveri. Okay, so it would be a literature book, children, and in that book you will read lots of chapters, lots of poetries. Okay, so in your book, Kaveri book, there is first chapter which is how I taught my grandmother to read. Okay, children, so we are going to read this chapter today, which is the very first chapter of the book, and it is written by Sudha Murthy. She is the writer of this chapter, right, children? So what do you understand from the chapter how I taught my grandmother to read? Yes, there is a granddaughter and she is telling about this कि how she taught, कैसे उसने अपनी grandmother को पढ़ना सिखाया. ठीक है? So before the chapter, children, there are the few exercises which you will have to do yourself. Okay, children? So for very first activity is given this, complete the given word verb. So what is the activity? You will tell the answer, the main four kind of answer of this question, which is why is it important to learn how to read and write? And there are lots of answers. As you will read this, lots of answer will come in your mind. Everybody will fill the answer themselves. Okay, children? And then again the second activity, which is read the questions given below and share your answer with your classmate. It would be the another activity which you will discuss with your teacher. Okay, children? So here the first is, which language do your grandparents or elderly relatives speak? So, which language? कौन सी लैंग्वेज में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एल्डरली यानी कि बुजुर्ग लोग हैं आपके घर में, वो आपस में बात करते हैं? हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद दैम? आप वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और आप उनके साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं? ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद दैम? आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है उनके साथ में? ठीक है, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी फैमिली में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसको देख के, चिल्ड्रन. ठीक है. So my dear children, there are the another activity in question number, yes, obviously the third part. Okay, so in which you will have to read the following passage. A passage is given here and you will match the highlighted words with their meanings. Okay, you will match the word with their meaning, so you will do them yourself. Let's start the chapter, which is the first part. The chapter is divided into two parts. How many parts? Yes, two parts. And from them, the first is reading for meaning. Okay, so first part is this. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So here, the writer. Who is the writer? Yes, I already told you in starting who is. Yes, Sudha Murthy ji. Okay, so what she is saying कि when I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की एक बच्ची थी, तो I used to stay in a village in North Karnataka. मैं अपने पेरेंट्स के साथ में नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी. ओके, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. दोज डेज, उन दिनों मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. ठीक है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट यू नो ना, जिस वाहन से आप आते जाते हैं, चाहे वो ट्रेन ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, है ना, तो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट वॉज नॉट वेरी गुड. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर. तो हमें जो मॉर्निंग पेपर मिलता था ओनली इन द आफ्टरनून. कब मिलता था बच्चों? आफ्टरनून के समय पर.
द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन आती थी वो एक दिन लेट आती थी बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट वॉज वेरी स्लो. सो ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस. हम सभी ईगरली माने बहुत उत्सुक होकर के बस का वेट कर रहे थे. विच यूज टू कम विद द पेपर्स, ऐसी बस जो पेपर्स लेके आती थी, न्यूज़पेपर लेके आती थी, वीकली मैगजीन्स लेके आती थी और पोस्ट लेके आती थी. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. So in that time, उस समय में त्रिवेणी जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की. ठीक है, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, और बहुत अच्छी राइटर थी वो त्रिवेणी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, और त्रिवेणी को पढ़ना बहुत ज़्यादा, उसका जो स्टाइल होता था बहुत ज़्यादा ईजीली पढ़ा जाता था और कन्विंसिंग होता था. कन्विंसिंग माने जो समझ में आ जाता था. हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और उनकी जो स्टोरीज होती थी ना मैगजीन में वो डील करती थी, मतलब उसमें होती थी कैसी स्टोरीज होती थी. यस, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन की, ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि साधारण लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड. एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा कैसी होती थी बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग होती थी. ठीक है. एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, और अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश, कन्नड़ लिटरेचर जो था, जो साहित्य था, शी डाइड वेरी यंग. अब वो बहुत ही यंग एज में ही डेथ हो गई थी उनकी. किसकी? यस, त्रिवेणी की. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यहाँ तक कि 40 साल के बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवल. लोग उनके नॉवेल्स को पढ़ते थे और क्या करते थे बच्चों, प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे. ठीक है. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, और उनमें से ही एक नॉवल था जिसका नाम क्या था बच्चों, काशी यात्रा. इट वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन, और इट वॉज जस्ट लाइक अ सीरियल. जैसे सीरियल होते हैं ना, जो डेली सोप्स होते हैं, उसके लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं. तो जस्ट लाइक दैट जो वीकली ये मैगजीन्स में आता था, ये नॉवल जो आता था, उसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे उसकी जो स्टोरी थी उसको जानने के लिए. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. सो वॉट इज़ गिवन इन दैट काशी यात्रा बुक? इट इज़ अ स्टोरी, एक ऐसी ओल्ड लेडी की कहानी थी जिसमें एंड हर आर्डेंट का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा कीन, गहन इच्छा बहुत ज़्यादा, टू गो टू काशी, कहाँ पे जाने की, काशी या फिर वाराणसी जाने की इच्छा. सो मोस्ट हिंदूज जो होते थे वहाँ पे बिलीव करते थे दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. तो बहुत सारे हिंदुओं का ऐसा मानना था, विश्वास करते थे कि जो काशी है, यस चिल्ड्रन, सो ऐसा विश्वास था कि जो काशी है वहाँ पर जाना और वर्शिप करना भगवान विश्वेश्वरा की, वो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो बूढ़ी लेडी थी जिसकी काशी यात्रा में जो नॉवल है उसमें स्टोरी थी, है ना, वो जो लेडी थी वो भी लॉर्ड विश्वेश्वरा जो थे उन पर पूर्ण विश्वास रखती थी. ओके. एंड अ स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड, और उसका जो स्ट्रगल था वहाँ पे पहुँचने का, काशी पहुँचने का, उसने कितना स्ट्रगल किया वो सब आपको इस नॉवल में जिसका नाम है काशी यात्रा उसमें डिस्क्राइब किया गया है. In the story there was also a young orphan girl, और in the story, इस story में जो काशी यात्रा story है बच्चों, there was also a young orphan. orphan का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसके माँ बाप नहीं होते, orphan मैंने अनाथ, who fall in love but there was no money for the wedding. और इसी में ही एक ऐसी भी story है एक लड़की की, एक गर्ल की, यंग गर्ल की, जिसको लव हो जाता है किसी से बट देयर वाज नो मनी, लेकिन उसके पास में वेडिंग करने, शादी करने के लिए मनी नहीं होती है.
इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। और एंड में क्या होता है काशी यात्रा स्टोरी में, जो ओल्ड लेडी है वो अपनी सारी सेविंग जो होती है, जो काशी जाने के लिए उसने सेव किया होता है, उसको क्या करती है, अपनी सारी पैसा दे देती है। किस लेडी को, जो ऑर्फन गर्ल थी, ठीक है। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उसने क्या कहा कि इस ऑर्फन गर्ल की जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। यानी कि काशी में भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ऑर्फन गर्ल की खुशी। ओके, so my grandmother Krish Takka, they were South Indian, so the name of the grandmother of the yes, the writer is Krish Takka. Okay, so she never went to school, so she could not read. वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी पहले के ज़माने में। जैसे आपको पता है कि लोगों को, जो लेडीज़ होती थी, उनको क्या एजुकेटेड नहीं किया जाता था, स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो जस्ट लाइक दैट उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेडनेसडे को वो मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और मैं इस स्टोरी का, काशी यात्रा स्टोरी का हर एपिसोड अपनी दादी को सुनाया करती थी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो उस समय उनकी दादी क्या करती थी, सारे काम छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके पूरा ध्यान लगा के अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी उससे वो स्टोरी सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और उसके बाद वो अपने दिल से सारा जो टेक्स्ट होता था उस स्टोरी में वो सारा रिपीट भी करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटैगनिस्ट। यस, शी वॉज आइडेंटिफाइड हर सेल्फ। वो अपने आप को कंपैरिजन कर रही थी जो प्रोटैगनिस्ट थी, जो नॉवल की जो मेन लीड कैरेक्टर थी उससे, क्योंकि वो भी नहीं गई थी काशी और जो प्रोटैगनिस्ट थी वो भी जाना चाहती थी। शी हैज़ ए कीन डिज़ायर टू गो टू काशी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो मोर देन एनीबडी एल्स मतलब किसी और से सबसे ज़्यादा मेरी जो दादी थी, शी वॉज द वन, जो वो सबसे वो एक लेडी थी जो इतनी इंटरेस्टेड थी ये जानने के लिए कि भाई अगले एपिसोड में क्या हुआ होगा काशी यात्रा में, एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं वो सीरियल उनके सामने सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग what happened next in काशी यात्रा, she would join her friends at the temple। ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा जो नॉवल था उसमें क्या हुआ, उसके बाद वो टेम्पल जाती थी कोर्ट यार्ड के, और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। और जहाँ पर हम बच्चे, हम सब भी वहाँ पर इकट्ठे होते थे और गेम खेलते थे, वहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के पास जाती थी और वो सारी काशी यात्रा की जो स्टोरी थी ना चिल्ड्रन, वो सब सुनाया करती थी। जस्ट लाइक दैट पिक्चर, सी, राइट? Okay, so now what happened? See, she would discuss the latest episode with her friends। वो अपने फ्रेंड्स से जो लेटेस्ट एपिसोड होते थे वो डिस्कस करती थी, वो बताती थी उस काशी यात्रा नोवेल के। एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और उस समय में मुझे ये समझ में ही नहीं आता था ये कौन बोल रहा है बच्चों, जो राइटर हैं स्टोरी की, ठीक है। वो कहती हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि इस स्टोरी के बारे में जानने के लिए इतना डिबेट क्यों हो रहा है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं एक वेडिंग में गई अपने कजन्स के साथ पड़ोस के एक गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और उन दिनों एक शादी जो था वो क्या होती थी, एक बड़ी इवेंट मानी जाती थी, बहुत बड़ा जलसा। वी चिल्ड्रन इंजॉयड अवर सेल्फ थॉरोली। और हम सब बच्चे भी वहाँ पर इंजॉय करते थे।
वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम। अब हम सभी बच्चे जो थे, मेरे कजन्स और हम सब खाते थे, पीते थे, खेलते थे और सेवरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब फुल टू मस्ती में मौज मस्ती करना फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। सेवरिंग द फ्रीडम, हमें जैसे फ्री कर दिया गया हो एकदम आज़ादी से, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बिकॉज ऑल द एल्डर्स वॉज बिजी, क्योंकि सभी बड़े बिजी हो जाते थे और हम लोग मस्ती में मौज लेते थे, ठीक है। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। हम 2 दिन के लिए जाते थे और कितने दिन वहाँ पे रह के आते थे शादियों में? यस, फॉर अ वीक, 1 हफ्ते तक, क्योंकि बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, और जब मैं वापस अपने गाँव में आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने देखा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो टीयर्स, मैंने आंसू बहा रही थी। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ये जान के कि क्या हो गया ग्रैंड मदर को। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मैंने उनको कभी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी रोते हुए नहीं देखा था, राइट। आई वॉज वरिड, मुझे बहुत चिंता हुई ग्रैंड मदर की। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? सो साउथ में ना अवा बोला जाता है ग्रैंड दादी को जो, ठीक है। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अवा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब होता है बच्चों मदर। कन्नड़ में मदर को अवा बोला जाता है ना, नॉर्थ कर्नाटका में। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने अपनी गर्दन हिलाई मेरी दादी ने, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं भूल गई इन सब चीज़ों के बारे में। इन द नाइट, और रात में क्या हुआ? आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम टेरेस पर, छत पर, ओपन एरिया में सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, पूर्णिमा की रात थी, ठीक है। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड, उनका प्यार भरा जो हाथ था उसने मेरे फॉरहेड को टच किया। एंड आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, और मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, और मैंने क्या पूछा उनसे, क्या बात है? देखो ज़रा पिक्चर में, ठीक है। When I was a young girl, जब मैं बहुत यंग थी तब I lost my mother, मैंने अपनी माँ खो दी थी। There was nobody to look after and guide me, और कोई भी नहीं था मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए। My father was a busy man, और मेरे जो फादर थे वो कौन थे? बहुत बिजी पर्सन थे, वो जॉब करते थे। And got married again, और उन्होंने दोबारा से मैरी कर ली, शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों जो पीपल थे वो कभी भी कंसिडर नहीं करते थे गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए, ठीक है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरी शादी भी बहुत जल्द हो गई थी, और एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी जल्दी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हुए। एंड ऑलवेज फेल सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, एंड ऑलवेज मैंने ऐसा फील किया, बहुत ज़्यादा खुशी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खाना बनाने में, एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम्हें खाना खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, उस समय मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो मैंने क्या अपने मन में सोचा कि मेरे जो चिल्ड्रन हैं, मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो स्कूल ज़रूर जाएं। सो चिल्ड्रन, जब ग्रैंड मदर उनके पास आई, जो राइटर थी उनके पास आए, है ना, तो उन्होंने ये सब बातें अपनी ग्रैंड डॉटर को बोली, ठीक है।
This is the first part of the chapter, and now there are the few exercises related to that chapter which you will do yourself. Later we will discuss in another videos. Okay, children. So what we are going to do now, whatever I explained, you will read once more and try to understand the first part of the chapter. I'm going to make the another part of the second part of this chapter in my another video, because video is already so lengthy. Okay, I think all enjoyed very well. Children, keep watching my videos and do subscribe my channel. Bye bye.